संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती तत्व ज्ञान करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਫਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, आज की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है।
कभी सेहत की चिंता तो कभी रोजगार की तलाश। जिंदगी की उलझनों में सुकून मिलना मुश्किल हो गया है। हर कोई ऊपर वाले से राहत की उम्मीद करता है, पर सही रास्ता क्या है ये किसी को पता नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी एक मिसाल है। ये कहानी है शंकर यादव जी की, जो देवघर झारखंड से हैं। शंकर जी की जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। वे HIV, एड्स और किडनी की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे थे। ऊपर से उनके घर पर भूत प्रेत का प्रभाव भी था और उनकी पत्नी की असमय मौत ने उनके दुखों को और बढ़ा दिया था। शंकर जी की तकलीफें इतनी बढ़ चुकी थीं कि डॉक्टरों ने उन्हें सिर्फ 15 दिन की जिंदगी दी थी। ऐसे में इंसान खुद को कितना अकेला और बेसहारा महसूस करता है, ये समझा जा सकता है। भक्ति से पहले शंकर जी का किसी भी गुरु या आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं था। वे अपने बल पर जिंदगी की चुनौतियों से लड़ रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उनके पिताजी को एक शिष्य ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया। पहले तो शंकर जी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, पर जब जिंदगी और मौत का सवाल सामने आ गया, तब उन्होंने एक आखिरी उम्मीद के तौर पर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने का निर्णय किया। और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। HIV, एड्स जैसी लाइलाज बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। उनकी किडनी की समस्या भी धीरे धीरे ठीक हो गई। उन्होंने अपने जीवन से नशा, शराब और मांसाहार पूरी तरह खत्म कर दिया। मानसिक रूप से भी वे पहले से बहुत बेहतर हो गए। उनके जीवन में एक और चमत्कार हुआ। उनकी बेटी की शादी बिना दहेज के हो गई, जो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। दर्शकों, सोचिए, क्या ऐसा बदलाव सिर्फ किसी इंसानी कोशिश से संभव था? नहीं, ये बदलाव सच्ची भक्ति और संत रामपाल जी महाराज की कृपा का परिणाम था। शंकर जी ने परमात्मा की शरण में आकर जो राहत और सुकून पाया, वह हम सबके लिए एक प्रेरणा है। सच्ची खुशी और सुकून वहीं मिलता है जहां दिल से डर और भावनाओं की बेड़ियां टूट जाती हैं। आइए हम भी उस सच्चे मार्ग पर चलें जो हमें हमारी परेशानियों से आजादी और दिल को सुकून दे सके। शंकर जी की इस प्रेरणादायक यात्रा से सीखें कि जब तक सांस है तब तक आशा है। धन्यवाद। नमस्कार सर। सत्साहेब। सर क्या नाम है आपका? शंकर यादव। शंकर यादव जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम देवघर झारखंड चौपा मोड़ से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 29/5/2014 को। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या कोई भक्ति साधना भी करते थे? इधर अपने गांव घर में जितने देवी देवता है, सारे देवताओं का हम पूजा करते थे। खासकर बजरंगबली का शनिचर मंगल हनुमान चालीसा पाठ करते रहते थे। सुल्तानगंज से सावन में जल लाते थे, डाक जल, कांवर, और देवघर से बासुकीनाथ दंडवत प्रणाम करके गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा में सत्यनारायण भगवान का घर में कथा होता था हर एक साल, और दुर्गा का बलि चढ़ता हम लोग के यहाँ, काली का बलि चढ़ता, ये सब करते रहते थे। सर, आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे। फिर आपने झारखंड से हजारों किलोमीटर दूर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, इसका क्या कारण रहा? मैं बीमार पड़ गए थे भगत जी। हमारे साथ बहुत सारा कष्ट था। पहले तो हमारी पत्नी बीमार पड़ी, उसको इतना इलाज कराए और इतना झाड़ फूँक करवाए, नहीं बचा पाए। दुनिया के कोई भी डॉक्टर उसको नहीं बचाया, जबकि देवघर, भागलपुर, रांची, पटना, हर जगह ले जाके इलाज करवा के लाए, वापस घर लाए, मृत्यु हो गया। मेरा 2 बच्चे थे, एक 5 साल का, एक 7 साल का। मेरी पत्नी डेट की। इसके बाद 1 साल बाद हम बीमार हो गए और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए भगत जी। जो खाना खाते थे तो उल्टी हो जाता था, चावल खाते थे तो चावले, पानी पीते थे पानी, ना पानी पचता था ना चावल। इतना परेशान हुए जिसका इलाज ही कहीं नहीं हो रहा था। देवघर में, भागलपुर, रांची, पटना, डॉक्टर विजय प्रकाश भी मुझे जवाब दे दिए थे। हर डॉक्टर हर बीमारी हमको निकाल रहा था। देवघर में बोला लीवर डैमेज है, और रांची गए तो बोला लीवर ट्विन चलना बंद हो गया है, और डॉक्टर विजय प्रकाश बोले कि ये किडनी में सूजन हो गए। और फिर से ये भागलपुर लाया तो बोला कि आपको एड्स हो गया, HIV पॉजिटिव। वहाँ से आए देवघर में, इसका मेरा इलाज चला HIV पॉजिटिव का सदर अस्पताल में। वहाँ से मुझे दवाई भी चालू किया, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि बचेगा ही नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है। और सीरियस भी हम थे, ना बोल पाते ना चल पाते थे। मेरा वज़न था 34 किलो,
हेमोग्लोबिन 7 ग्राम। और इसके बाद घर में सारे आदमी परेशान रहते थे। हमारे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते थे। अंतिम समय मेरा आ गया था जो समाज में दूध पानी दे के बाहर कर देता था। दोनों बच्चा को अंतिम मुलाकात के लिए स्कूल से ला दिया घर, बेटा को जसीडी से और बेटी को मोहनपुर कस्तूरबा से। इसी बगल में एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, वो बार बार मेरे पापा को बोलते थे कि इनको सतलोक का भक्ति दिला दो। तो पापा हमें बोलते थे तो हम बोलते थे कोई अक्ति भक्ति नहीं, सब तो खाली ढोंगी पैतरा है, बुड़बक बना रहे हैं। इतना देवी देवताओं का पूजा हम करते हैं, अच्छा नहीं हुए। हर एक साल आप सत्यनारायण भगवान का पूजा घर में कराते हैं, हमारे लिए आप महामृत्युंजय जाप करवाए, ये सब इतना बलि चढ़ाए, दंडवत प्रणाम गच्छे, जिंदगी भर छठ करने की बात आप कहे, हम अच्छे नहीं हुए, ये सब झूठ में हम नहीं जाएंगे। तब तक मेरा शरीर से कुछ सांस ज़्यादा था। लास्ट जब हो गए पोजीशन, हम भी चिल्लाने लगे कि अब नहीं बचेंगे। हमें डॉक्टर विजय प्रकाश ने हमें ये भी बोल दिया था कि इनको जो करना है करो, एक इंजेक्शन लगा देते हैं, इनका इतना डैमेज लीवर है जो कि ये बचने लायक नहीं है, इसे घर ले जाओ, इंजेक्शन लगा देते हैं, 15 दिन तक बच सकता है। हमारे घर वाले हमें घर ले आए वापस। जब बहुत ज़्यादा खाने पीने नहीं लगे, हम आवाज़ नहीं मुंह से निकलने लगे, पूरा समाज गांव का जुट गया कि अब नहीं बचेगा ये। तो दूध पानी हम लोग के यहाँ होता है कि मुंह में दूध देना है, पानी देना है, वो सब करके हमको घर से बाहर कर दिए थे। अंतिम समय मेरा गुजर रहा था, उसी समय हमको कैसे मालिक का ज्ञान अंदर घुसा या मालिक के दया हुआ, जो एक आदमी हमको बोला था जो आद आ गया, वही हम अपने पापा को बोले कि चलिए क्या भक्ति है सतलोक का, हमको भक्ति दिला दीजिए, हम तो मर ही जाएंगे। बगल 2-3 किलोमीटर बगल में एक भगत थे, उनके यहाँ ले गए, वहाँ पे ले जाके हमको लेटाए और लेटा के दंडवत प्रणाम करवाए मालिक का। मालिक के बारे में सारे ज्ञान हमको बताए कि इतने चीज़ों से वंचित रहना, तो हम तो मरने वाले थे, हर चीज़ में आँख नहीं खुल रहा था, कान से सुन के मुँह से हाँ हाँ करते रहे। और इसके बाद उन्होंने बोला ठीक है इतने चीज़ को मान रहे हैं तो टिकट कटा लीजिए, जाना होगा आपको बरवाला में भक्ति मिलेगा, हरियाणा। फिर उनके टिकट का मेरे पापा पैसा जमा किया, हमको लग गया प्यास, उनके यहाँ बोले भाई पानी पिएंगे, वो 1 गिलास पानी दिया, पानी पिए और इसके बाद वहाँ से टेम्पू पे लेटा दिया घर। वो भगत जी भी डर गए हमारी स्थिति देख के। हम आके लेटे और इसके बाद कुछ देर बाद नींद आ गया, नींद लगा फिर खुला। फिर मम्मी को बोले मम्मी खाएंगे, जबकि हम इतने दिन से खाने की बात नहीं कह पा रहे थे। मम्मी बोला बेटा क्या खाएंगे, हम बोले खिचड़ी। तो मम्मी खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी बनाने लगी तो गांव घर में हो जाता है कि मरने टाइम में लोग ज़्यादा खाते हैं, तो हमको खिचड़ी दिया, 1 कटोरी पूरा खा के हम और सो गए। तो इतना नींद आया मालिक की दया से, जो 2 बजे रात को नींद टूटा। और इसके बाद फिर मम्मी को बोलते हैं हम खाएंगे, बोला क्या खाएगा बेटा, तो बोले चावल और चटनी। फिर रात में मम्मी चावल बना के दी, चटनी दी, फिर खाए, फिर सो गए। सोए तो जितने आदमी हमारे घर परिवार, बहन भाई माँ, सब मेरे पीछे पड़ा हुआ था। सुबह होके उठे नहीं, उठे 9 बजे उठे तो खाट पे उठ के बैठ गए, सब पकड़ लिया कि गिरेगा मर जाएगा, सलाइन चढ़ा है, सलाइन खुला है, बहुत तरह की बात। डॉक्टर साहब बोल दिए थे 15 दिन में डेट हो जाएंगे, इसलिए घर वाले को आशा था कब ये मरेंगे, और इसलिए हमारे पीछे सब पड़े हुए थे। तो हम उठ के जैसे बैठे सब हाथ पकड़ लिया, फिर हमको लेटरिन लगा, फिर हम बाहर जाने लगे, जबकि हम खाट पे ही लेटरिन और उल्टी करते थे। पकड़ के थोड़ा साइड ले गया बच्चे लोग, फिर हम लेटरिन किए, वापस आए, खाट पे बैठ गए। कब मुँह धोए थे ये भी याद नहीं था हमको। फिर हम दतवन मांगे, फिर मुँह धोए, फिर बैठे। इसी तरह से 1.5 महीना में मेरा टिकट गाड़ी का कन्फर्म हुआ। फिर हम गए जींद से वहाँ संत रामपाल जी महाराज के बस लगे हुए रहते थे, इनकी बस से हम लोग बरवाला गए। बरवाला में जाके मालिक की भक्ति लिए संत रामपाल जी महाराज से, वहीं से हम ठीक हो गए। मेरे घर परिवार और सब सही हो गए। सर आपको बहुत सारी परेशानियां थीं, डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया था कि आप नहीं बच सकते। आपको इतनी भयानक बीमारी थी जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स ने आपको HIV पॉजिटिव बता दिया था। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आप ठीक हुए? क्या आपकी HIV की रिपोर्ट्स निगेटिव आईं? क्या आपकी समस्या का समाधान हुआ? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा उपदेश लिए, टोटल समस्याएं ठीक हो गई। भगत जी 2011 से बीमार थे, 14 में भक्ति लिए और अभी तक हम ठीक हैं। अभी हमारा वजन 65 किलो है। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति लेने से HIV या हमारा जो ये बता रहे थे आंत TB, लीवर चलना बंद था, लीवर में सूजन था, और सारी चीज़ से हम अभी अच्छे हैं मालिक की भक्ति, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति लेने से। अभी कोई दवाई हम नहीं खाते हैं। समाज में तो ये आश्चर्य हो गया कि डॉक्टर का जवाब दिया हुआ
खाट में मरा हुआ आदमी अगर इतना खड़ा हो गई, ये आश्चर्यजनक बात है। और हम जैसे भक्ति लिए संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा, हमारी बीमारी छूमंतर हो गए। हमारे साथ कोई बीमारी अभी नहीं है। सर आपको बहुत सारी बीमारियां थीं, जैसे कि लीवर डैमेज था, किडनी खराब थी, इसके साथ आप HIV पॉजिटिव थे। तो क्या आपके पास रिपोर्ट्स हैं? प्रूफ है, अभी मोबाइल में है हमारे कुछ रिपोर्ट और कुछ घर में है, जो हम दे देंगे आपको। सर और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद? तरह लाभ मिले हमारे घर में तो टोटल फैमिली, सबसे पहले मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे परिवार हम लोग भक्ति लिए। हमारी बेटी का रमेनी हुआ, फ्री में, पैसा नहीं लगा। शराब हम इतना पीते थे, जो मेरा नाम पूरे समाज में अभी शराबी के नाम से गिनती में रहता था। हम मांस भी उतना ही खाते थे, शराब भी पीते थे, खैनी, गांजा, बीड़ी, भांग, टोटल चीज़ से हम परिपूर्ण थे नशा में। और सारे चीज़ से हमको फ़ायदा हो गया, मुक्ति मिल गया। इसके बाद बीच में बेटी की रमेनी हुआ और बेटी का रमेनी अच्छा से हुआ। मेरा दामाद भी भक्ति लिया, दोनों नाती भक्ति लिए, बेटा पुतहु सारा परिवार भक्ति से, घर द्वार सब कुछ मेरा मालिक की दया से अच्छे हैं। बहुत सारे लाभ मिले हमको। हमारी माँ को करंट लगा, जो मालिक ने बाल बाल बचा लिए। हम जब, और एक तो भूल ही गए थे, जब हम दिल्ली जा रहे थे तो दिल्ली उतर के और दूसरी ट्रेन में चढ़े तो हमको जाना था जींद, और लोग बोले कि बीच में ही ये गाड़ी जींद नहीं जाएगी, आप जाके हम ये रोहतक में बदल लो। समाज कुछ उतरने लगे, हम नए नए जा रहे थे, हम और हमारे पापा दोनों तो कमज़ोर ही थे। सारे आदमी उतर गया और हमारे पापा लाठी लेकर ऊपरी में रह गए। हम बोले आइए आप, 1.5 महीना इतना बीमारी से कमज़ोर, और हम उनको बोले पकड़ लेंगे। गाड़ी खुल गया, बाप बेटा दोनों नीचे गिर गए, और गिर गए। वहाँ के सारे आदमी बोले कि 2 बंदे गए काम से। ट्रेन खुल गया, हम लोग को कौन ऊपर किया ये भी हम लोग नहीं जानते। ये तो सब संत रामपाल जी महाराज की दया है। जो हमारे साथ संगत 50 से 60 थे, इन लोग को भी आश्चर्य हो गया। सर आप हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने आए हैं। आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। आप झारखंड से आए हुए हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग आपकी जिला देवघर में स्थित है। सर देश और विदेश से लाखों लोग देवघर तीर्थ करने के लिए जाते हैं, और आप वहां से संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, और वहां आपकी लाइलाज बीमारी एड्स ठीक हुई। सर ऐसा कैसे संभव हो रहा है? लोग मेडिकल क्षेत्र से हारकर मंदिरों पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आपको ठीक कर दिया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास ऐसा क्या है? संत रामपाल जी महाराज के पास सच्चा ज्ञान है। वो सच्चा ज्ञान का मंत्र दे के लोगों को ठीक करते हैं। ज्ञान से ही ठीक हो जाते हैं, और ऐसा ज्ञान देते हैं जो विश्व में किसी के पास नहीं है। ढोंगी, पाखंडी और बेवकूफ़ बनाने वाले कोई इनके पास नहीं है। इनका ज्ञान में इतना शक्ति है, वाकई में ये भगवान है। और भगवान ऐसे नहीं, हम तो नहीं बता सकते मालिक, लेकिन भगवान हमारे साथ हैं और हमें दोबारा जन्म दिया मालिक ने। इनके पास इतना ज्ञान में शक्ति है। तो हम संत रामपाल जी महाराज से दया मांगते कि सारे समाज इनकी भक्ति करें और जाके किसी गैर में ना फंस जाएं। सर बहुत सारे श्रद्धालु आज आपको लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सर आपको लाइलाज बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आपको ठीक कर दिया। तो आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देंगे कि जो हमारे टीवी पे हमारे लाइव देख रहे हैं, सारे आदमी से हम ये बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा उपदेश लीजिए और अपने जीवन को कल्याण करवाइए। सर जो लोग आज आपको देख रहे हैं उनको भी कई बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तो क्या वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर ठीक हो सकते हैं? अवश्य होंगे। अगर नाम दीक्षा लेंगे तो 100% ठीक हो जाएंगे। इसमें इतना चीज़ हम बताएं और सब प्रमाणित के साथ बता रहे हैं। हमारे साथ सारा पेपर है, प्रूफ है, इलाज है, सारा दवाई का पेपर ऊपर हम आपको देंगे। और सारे समाज को भी बताएं कि आप आइए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपने जीवन को कल्याण करवाइए। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? सारे चैनल में नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पे संत रामपाल जी महाराज का नंबर दिया हुआ रहता है, फ्री कॉल। उन पे आप लगाइए, पुस्तक मिलेंगे। नज़दीकी नाम केंद्र पर जाके आप नाम दान ले सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, अपने जीवन को कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। साहब अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख
जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। 9वें मंडल का प्रथम सूक्त पढ़ेंगे। ये 9वां मंडल। अब यहां से थोड़ा सा ये देखना है कि इन्होंने, क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते रहे, इसलिए आगे चल के थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ की है, उसको यहां से पहचाना जाएगा। 1 नंबर मंत्र है मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 का मंत्र 1। इसमें लिखा है कि हे परमात्मन, ठीक, यानी परमात्मा की जानकारी है ये। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र अब 2 पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा कि हे परमात्मन आप, ठीक, और फिर तीसरे में हे परमात्मन आप, चौथे में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। और 5वें में हे परमात्मन आप तुमको, और फिर अब 6ठे में हे परमात्मन आप। अब 7वें में गड़बड़ होगी, इनके मुश्किल होगी, आगे तो भगवान को साकार लिखा है। अब 7वें में लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को गड़बड़ करनी शुरू कर दी ना। अब 8वें में फिर लिख दिया उस पुरुष को, यहां लिखना था उस परमेश्वर को। अब थोड़ा सा ये कंसेप्ट फिर क्लियर करना पड़ेगा। अब इन वेदों के अनुवाद करता महर्षि दयानंद और उनके अनुयायी हैं। अब महर्षि दयानंद के सिद्धांत को वो फाइनल मान कर चल रहे हैं कि भगवान निराकार है, और जो भी उसने लिखा है, जो भी मीनिंग दिए हैं, उसको वो सत्य मानकर उसके आधार से चलते हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है महर्षि दयानंद द्वारा लिखी, ये है ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत ये पुस्तक है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ये पुस्तक का नाम है। और ये कहाँ से छपी है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, 3/5, आसफ अली रोड, दिल्ली 2 है, नई दिल्ली 2 से। ये देखिएगा, इसके ये सृष्टि विद्या विषय संक्षिप्त, ये एक विषय है इसका। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वही चल रही है। इसके पृष्ठ नंबर 125 पे इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। देखिएगा नीचे, ये लिखा है यत पुरुष, और इसका अर्थ लिखा है पुरुष उसको कहते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है। अंडरस्टूड हो गया? पुरुष माने परमेश्वर, पुरुष उसको कहते हैं, दयानंद की लिखी हुई है, अनुवाद किया हुआ है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है, यानी सर्वशक्तिमान। ये भी इसने ना ईश्वर का वेरा था ना परमेश्वर का, फिर भी जो इनके अनुयायियों को ये मानने हैं कि दयानंद ने जो कहा वो सच्ची है, यानी पुरुष माने परमेश्वर। तो अब फिर पढ़ेंगे इसको। अब सिद्ध हो गया कि पुरुष माने परमेश्वर। अब हम यहाँ जहाँ पर इन्होंने गड़बड़ी करने की सोची है, भी इसको इससे क्लियर कर लेंगे कि जहाँ पुरुष लिखा है वो परमेश्वर है, भगवान जो सर्वशक्तिमान का आता है वो उसको पुरुष कहते हैं। तो ये देखिएगा, अब हम वही आगे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का और मंत्र नंबर 6 तक तो ये परमात्मा लिखे गए। और 7वें जब लागी लवा बात भगवान की, साकार की, सहशरीर की, वहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया। क्यों सोचा को व्यक्ति के बारे में बात होगी, पुरुष माने उस परमात्मा को। अब देखो 8वें में कमाल कर दिया, उस पुरुष को यानी उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। ये बताएंगे आपको सृष्टि रचना में कि सब बहुविध जीवन कीन पुकारा, तपशिला पर जल रहे थे जब हाहाकार मच रहा था। भगवान वहाँ उन परिस्थितियों को देखकर वहाँ आए अपना ज्ञान समझाने के लिए। तो उस परमेश्वर को, पुरुष माने परमेश्वर सिद्ध हो गया, उस परमेश्वर को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती जैसे ही हाहाकार मच रहा, कुछ जीवन नहीं रहा प्राणी का, एक माया जोड़न का उद्देश्य बन गया। तो उस समय में परमात्मा या स्वयं आते हैं या अपना दास कोई भेजते हैं अपनी पावर दे करके। तो उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। जब परमात्मा स्वयं आते हैं उस समय का जिक्र है। और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को
वह पुरुष यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है। पुरुष माने परमात्मा। क्लियर हो गया? अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का आगे हम पढ़ रहे हैं। और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। मधु में यानी बड़ा प्यारा शरीर मिलता है। वो 3 प्रकार के शरीर से सबका सब व्यवस्था को संभालता है। ये भी क्लियर हो गया। फिर उसमें से दूसरी प्रकार की जो लीला है वो यहाँ लिखी है कि अभी अदन्या उत्सनंती धेनुव शिशुम सोम इंद्राय पातवे। उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, ये पुरुष हटा दिया यहाँ पर, अमर पुरुष लिखना था। सोम माने उस चंद्रमा के से शीतल स्वभाव वाले भगवान अमर पुरुष को, और पुरुष माने यहाँ पर परमेश्वर समझो। उस सोम स्वभाव वाले परमेश्वर को जो शिशु रूप में, शिशुम, ये शिशुम मूल पाठ में शिशुम लिखा है। शिशुम कुमार अवस्था में ही, यानी जब वो बालक रूप में प्रकट होते हैं। अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, जिसको सांड ने टच ना किया हो। कंवारी, अभी माने पूर्ण रूपेण, सब प्रकार से पूर्ण रूपेण अधन्या, जो सांड के द्वारा कभी सथाई ना गई हो। तो इस कहने का भाव कि कंवारी गायें गौवें, धेनु गौवें तृप्त करती हैं। उनकी परवरिश की लीला इन कंवारी गायों के द्वारा होती है जब परमात्मा सी स्वरूप धारण करके आते हैं। ये तो बता दिया वेदों ने, और चारों वेदों में इसका रह रहकर प्रकरण है, बहुत कई प्रसंग है इसके। अब इसमें कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए एक ही दिखाते हैं, समय आने पर फिर और दिखाया करेंगे। अब वो सूक्ष्म वेद में लिखा है उस परमेश्वर ने जो लीला की थी आज से 600 वर्ष पहले, और उस समय क्या हुआ था ये देखिएगा। ये सूक्ष्म वेद है, इसमें दिखाते हैं आपको कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर लहर तारा नामक तालाब में प्रकट हुए, वहां पर एक अष्टानंद नाम के ऋषि साक्षी हैं इस बात के कि कोई ऊपर से तेज का गोला आया, और उसने देखा ऊपर वो नहा धोकर सुबह सुबह वक्त से उस तालाब पर एकांत स्थान पर प्राकृतिक शांति के अंदर बैठकर अपना साधना करने की चेष्टा कर रहा था। एकदम आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया, उसने देखा, ध्यान से आंखें बंद होगी। जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं, देख नहीं सकते, आंखें बंद होती हैं, फिर भी उसमें सूर्य का जो आकार है वो दिखाई देता रहता रहकर, ऐसा अंदर हमारे फीड हो जाता है प्रतिबिंब। ऐसे अष्टानंद जी जो रामानंद जी के शिष्य थे, उसने जो उधर देखा वो सहन नहीं कर सका उस तेज को। आंखें बंद हुई तो उसमें क्या देखा है कि नवजात शिशु बालक का रूप दिखाई दे रहा, ऊपर से आ रहा है। दोबारा देखता है, आंखें खोलकर क्या देखा, वो प्रकाश एक कोने में लहर तारा तालाब में उसी में सिमट जाता है। वो उठकर चला जाता, अपने गुरु जी से प्रश्न करता है कि भगवान मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो रामानंद जी कहते हैं कि बेटा ये कोई अवतार गण आते हैं ऊपर से, तब ये तारा सा टूटा करता है। कोई ऊपर से अवतार आए हैं और यहाँ कोई देव आया होगा, किसी माँ से गर्भ लेगा और यहाँ अपनी लीला करेगा। तो इनको तो इतना ही पता है कि इनके भगवान माँ से जन्म लेते हैं, और वो स्वयंभू परमात्मा है। स्वयंभू, उसका कोई जन्म दात करने वाला नहीं, स्वयंभू स्वयं प्रगट है, स्वयं ही वो प्रगट है, कोई इसका जन्मदाता नहीं है। उधर से नीरू नीमा नाम के 2 दंपति थे जुलाहे, वो स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। वो पहले ब्राह्मण थे, मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। बेस भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन वो अपने आत्मा से भगवान शंकर को नहीं निकाल पाए थे, उन्हें अंदर से उसी की आराधना करते रहे। उस दिन भी उन्होंने यही कहा कि हे भगवान शिव जी, क्या हमारे लिए, उसकी पत्नी ने कहा क्या आपकी दासी के लिए आपके घर पे बच्चों की कमी पड़ गई, हमें भी एक खिलौना दे देते, हमारा भी जीवनाधार बन जाता। ऐसे करते हुए लहर तारा तालाब पर पहुंचे। वहां क्या देखा, नवजात शिशु कमल के फूल पर पाया, घर ले आए। 25 दिन के हो गए, ना जल पीवे ना दूध पीवे, और फले फूले ऐसे जैसे किलो दूध पीता हो बच्चा डेली, और स्वस्थ इतने।
अब उसकी जो मुंह बोली माता नीमा वह बहुत दुखी होगी, बहुत बुरी तरह रोने लगी। हे भगवान शिव जी, आपने या तो सुनना नहीं था या तो ये देना नहीं था, अब दे कर ले रहे हो भगवान। अब मैं नहीं जीऊंगी इस बालक बिना, ना जाने इस बच्चे ने मेरे पर क्या जादू कर दिया, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। 25 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, अब ये मरेगा साथ मरूंगी मैं, पक्का इरादा। तब परमात्मा ने प्रेरणा की, शिव भगवान को क्रय करावा साइया मन में लहर उठा। शिव जी एक साधु रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए, क्योंकि वो शिव जी को याद करके रो रही थी। तो पूछा माई क्या बात है, क्यों रो रही है? सारी कथा बताई, सारी कहानी बताई कि एक दिन हृदय से पुकार की थी, 60 वर्ष की आयु होगी, संतान नहीं थी। एक दिन प्रार्थना की थी अपने शिव भगवान से, उन्होंने हमारी सुनी। एक लहर तारा तालाब के ऊपर कमल के फूल पर ये बालक दे दिया। अब ये बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा है, 25 दिन का हो गया महात्मा जी। अब ये मरने वाला है, गेल मैं मरूंगी, इसके साथ मरूंगी दरिया में डूब के, ये मेरा अटल इरादा है। तब उसने कहा माई देखा तेरे बच्चे को, कहाँ है? वो लाई उठा के माई ने सोचा महाराज के चरणों में डाल देती हूँ। जो ही उसने चरणों में डालना चाहा, परमात्मा आकाश में उड़ गए और शिव जी के सिर के पैर लला करके यहाँ ऐसे आकाश में हवा में स्थिर हो गए। तब शिव जी ने ऐसे किया, शिव जी के हाथों में आ गए। फिर परमात्मा बोले कि इनको कहो एक कंवारी गाय ले आवें और उसके ऊपर आप हाथ रख दियो महात्मा जी, वह दूध दिया करेगी, वह दूध पीऊंगा मैं। 7 बार बोले बच्चे, 7 बार चर्चा करी परमात्मा ने शिव जी से। और वो देख रही नीमा भी, नीरू भी आ गया। नीमा देख रही है, वो ये सोच रही है कि इस महात्मा में इसी करामात है, मेरा बेटा आकाश में उड़ा दिया, इसी महात्मा में ये करामात है। यूँ बोल रहा है बच्चा 25 दिन का। अब कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। वो सारी करामात उस साधु की मान रही है। जैसा भी आदेश था, शंकर भगवान ने कहा कि नीरू जा एक कुंवारी गाय ले और कोरा बर्तन ला, कुमार के साफ छोटा सा, वो ले आया। भगवान शिव जी ने उस पर कमर पर हाथ मार दिया। लंबे लंबे सतन हो गए, दूध अपने आप सर्वित हो गया, उन थनों में से निकलना धार बंद की। वो साफ पात्र जो लाए थे कुमार के घर से, वो नीचे रख दिया, पात्र भरते ही बंद हो गया। तो परमात्मा को दूध पिला गया, गट गट पी गए। अब ये लीला भगवान करता है, वेद बताते हैं और करी भगवान के इतिहास बताता, उनकी लीला बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। तो परमात्मा कौन फिर? वेद बताते हैं कि कुंवारी गायों का दूध पीता है। और पिया किसने? कृष्ण तलाक गाँव रखा करता, 200 200 400 400 ये थे, इन्होंने पिया, कुंवारी गाय का पिया। इनकी जीवनी में लिखा हुआ ये दिखाते हैं आप। ये है कबीर सागर, ये परमात्मा की लीला लिखी है इसके अंदर। ये 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई, ये वहां से प्रकाशित है। यहाँ प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, यानी कबीर पंथियों का लिखा हुआ। दास ने अपनी तरफ से नहीं लिखा कुछ भी इसमें, किसी में। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग बम्बई, इतने। अब इस पे लिखा है ज्ञान सागर में, ये देखिएगा ज्ञान सागर के 74 पृष्ठ पे, ये 74 पृष्ठ है। इसमें कहते हैं सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। जैसे रात में चकोर पक्षी ने चांद दीख जा, कहते ऐसे बच्चा मिला तो इतनी खुशी हुई। ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासो पुन अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखते आम, अन्न पानी बख्श नहीं जुल्हा शोक जनाव। अब कुछ नहीं खावे, बालक लेकर आगे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। जैसे कोई बच्चे गड़बड़ हो जाए तो साधु संतों के पास जाके पूछते हैं हमारा बच्चा वो दूध नहीं पीता, कारण बताओ भगवान। महाराज जी तो मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद से कहा कि महाराज जी हमारे
बेटा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, एक बालक मिला है मुझे कमल के फूल पर। रामानंद ध्यान तब धारा जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म तुम ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नी भली बाती, कुछ तुम सेवा हरि की चूका, ता तो भय जुल्ह का रूपा, प्रीति प्रभु गई तो लीना, ताते उद्यान में सुत तो दीना। तेरी प्रीति को सुनकर भगवान ने जंगल में तुझे पुत्र दिया। हे प्रभु जस कीन तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। अब नीरू कह रहा है कि मेरे साथ जो बनी सो बनी, पर और दुख हो गया। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सु दावंत कुछ खाई। भूखा बेटा बच्चा कुछ खाओ, ऐसा व्यवस्था करो। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा पुत्र जो है कोई विद्वान पुरुष है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाड करो ते ही आगा। एक बछिया ले आओ जिसको बैल ना लग गया हो, यानी अनटच्ड कंवारी गाय बछिया ले आओ, और दूध चले ते ही थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुतावंत जब होवे ता कहें देव खवाई। अब जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब ये है ना चला दूत, ये दूत कौन था? ये भगवान शंकर थे। अब इसकी पुष्टि पुण्यात्मा कबीर सागर परमेश्वर का विधान 5वां वेद और उनकी जीवनी है। इसमें उस परमेश्वर ने आज की जो ये पिछली पीढ़ी की पहले जानकारी दी थी, और उसमें क्या कहा था? काल की और परमात्मा की तपस्या के ऊपर वार्ता हुई थी। तो काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, और ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब गवन संसार ही कीजिए। जो परमात्मा से कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, भगवान आप आए हो यहाँ जीव लेने के लिए, और चौथे युग कलयुग में कितने ही ले जाना। जब परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। एक वचन और लिया था भगवान से कि परमात्मा जो आपका ज्ञान माने आपका, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे नकली ज्ञान पर, तो मेरा उसको ना ले जाना। परमात्मा बोले वो तो मेरा काम में का को नहीं। तो जब सारी परमात्मा ने स्वीकृति दे दी, जब काल ने कहा था कि बेशक जा नीचे, तेरी कोई नहीं मानेगा, कलयुग में ऐसा कर दूंगा, नरे पंथ नरे मजहब बना दूंगा बहुत बहुत, और 12 नकली पंथ तेरे नाम ते, कबीर पंथ, सतलोक, सचखंड और अनेक पंथ में चलाऊं, इस जीवों को भरमाऊं, और देवल देव मंदिर पुजवाऊं, और या विद जीवों को भरमाऊं। जीव न माने कहा तुम्हारा, और बेशक जा तू ज्ञानी संसारा। फिर तुम्हारा जीव कहा नहीं मानेंगे। अब 12 पंथ चला दूंगा, कबीर कबीर पंथी ये नरे, ये सारे 12 पंथों में आते नकलियों में, और पंथ अनेक चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, ये अनेक पंथा में आगे, ये सब काल प्रेरणा काल के चलाए हुए पंथ है। तो इन्हीं की थोड़ी सी यहाँ एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जो इस कबीर सागर में कबीर पंथियों ने अज्ञानतावश कुछ कटिंग कर दी, कुछ मिलावट कर दी, अपने अनुसार थोड़ा बहुत इन्होंने गड़बड़ की है, लेकिन फिर भी ये सच्चाई को छुपा नहीं सके। इस मालिक को पता था कि 600 साल में कुछ गड़बड़ी काल करवा देगा, काल के दूत कबीरपंथी होंगे। फिर उसकी पूर्ति के लिए कहा था उसी समय कि जो 12वां पंथ होगा ना गरीबदास जी वाला, उसमें मेरी उसके द्वारा, क्योंकि पंथ चलेगा परमात्मा का, जैसे पंथ चले थे वो तो चले थे उनके खास पुण्यात्मा थे, लेकिन उसमें आगे फिर काल के दूत घुसते चले गए। तो 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होगी, और वो जो मिलावट कर दी गई है या कोई जिसका जिसी समझ में आई उसने काट कर अपने हिसाब से लिख ली, कुछ एक स्थानों पर, सारी नहीं, तो उसकी पूर्ति उस वाणी से होगी जो गरीबदास जी बोलेगा। और वो ऐसा ही है। पहले ये दिखाते हैं कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। अब देखिएगा ये वही कबीर सागर है। ये देखिएगा कबीर वाणी, एक अध्याय है इसमें कबीर वाणी, और ये 136 पृष्ठ पे है ये। अब नीचे देखेगा
द्वादश पंथ चलो सो भेद, यानी द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना है। इन 12 पंथों में काल का फुरमान, काल का आदेश, उसका ज्ञान भरा रहेगा। और इन 12 पंथों में जो नाम ले रखा है कबीर पंथों में, ये कभी ठिकाने नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यहाँ ठीक लिखा कि वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे, और दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार पंथ, पांचवा बीजक पंथ, और छठा ये सतनामी पंथ, और सातवां ये जीवा पंथ, ये राम कबीर पंथ। इस तरह के 12 पंथ। अब यहाँ इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, इन्होंने यहाँ चूड़ामणि लगा दिया, यहाँ चूड़ामणि को वंश से बाहर कर दिया। प्रथम ये लिखना था, ये प्रथम वंश है, ये प्रथम वंश चूड़ामणि और आगे शाखा। अब इसका यहाँ भेद चलेगा। ये है कबीर चरित्र बोध, और इसके ये 1870 पृष्ठ पे है, 1870 पे। यहाँ देखिएगा, कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। यहाँ इन्होंने ये नारायण दास पंथ गलत लिख दिया, क्योंकि नारायण दास तो कति कबीर से विमुख, कबीर जी से विमुख था, उसने तो ये स्वीकार ही नहीं किया था। यहाँ लिखना था प्रथम चूड़ामणि का पंथ, और दूसरा याज्ञोदास, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, और छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी सातवां, आठवां कमाली पंथ, ये कमाल का पंथ, कमालिये, ये कमालिये लिखना। राम कबीर पंथ 9वां, परमधाम की वाणी 10वां, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये गरीबदास छुड़ानी वाले, उनका 12वां पंथ है ये। अब यहाँ क्लियर लिखा है, और आगे देखो इनकी वाणी में फिर कैसे लिखा है। अब इससे ये समझ में आओगी ये कहाँ बोले हैं। अब हम आ जाते हैं कबीर वाणी बोध सागर। कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे है। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ये कबीर परमेश्वर की वाणी है। और ताते आगम कह हम व्याख्या, हमने भविष्य की बात बता दी तेरे को धर्मदास। और वंश हमारा, ये प्रथम लिखना था, प्रथम हमारा चूड़ामणि शाखा। ये चूड़ामणि है प्रथम शाखा हमारी। यह उन्होंने वहाँ प्रथम लिख दिया, इन्होंने जग्गू लिख दिया दूसरा। ये प्रथम ये लिख होना चाहिए था, प्रथम ने जग्गू लिख दिया, जबकि यहाँ लिखना चाहिए था प्रथम। ये चूड़ामणि को प्रथम लिखना चाहिए था जब पूरे होंगे 12। फिर भी हम इनकी जो अज्ञानता इन्होंने की है स्पष्ट है। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम समझो। अब प्रथम जागू, जैसे आपने देखा था यहाँ पर, क्योंकि ये पैरेलल चलेगा, जब समझ में आओगी, बहुत उलझा हुआ है। प्रथम नारायण दास लिखा है ना, यहाँ लिखना था ये चूड़ामणि, और दूसरा जागू दास जागू, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, टकसार का पंथ। अब ये याद रह जाएंगे आपके, दोबारा फिर दिखाऊंगा यहाँ पर। अब हम कबीर वाणी कबीर बोध सागर में आगे 136 पृष्ठ पे। ये प्रथम जागू लिख दिया इन्होंने, ये दूसरा जागू होना चाहिए था, और तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन की वही नो के नो, वहाँ क्लियर लिखा हुआ है टकसार का भेद। ये बीजक पंथ, जीवा का पंथ बोले इसने। फिर है छठवां है सतनामी, फिर राम कबीर पंथ, ये ज्ञानी पंथ 10वां, और 11वां ये भेद परम धाम की वाणी। ये परम धाम की वाणी जो पंथ है ये 10वां है, 10वां है, ये 11वां, ये 10वां लिखा। अब 12वां संवत 1775 हुई, ये मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पर, संवत 1775 है, नहीं है 74 होना चाहिए। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म है, और ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। संवत 1774 और सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। और ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, यानी गरीबदास जी के बाद कबीर साहब की फिर से महिमा हुई थोड़ी थोड़ी। आगे देखा, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे, साख हमारी लेस जीव समझावे, असंख्यों जन्म ठोर नहीं पावे। ये 12वें पंथ प्रगट है वाणी। ये 12वें पंथ के विषय में बता रहे हैं कि मेरी महिमा की वाणी प्रगट फेर होएगी।
12वें पंथ 12वां पंथ गरीबदास पंथ। फिर देख लीजिए, ये है कबीर चरित्र बोध में और 1870 पे कबीर साहब के 12 पंथों का ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। अब 12वें पंथ का हम फिर आगे यहाँ पर 136-37 पे बोध सागर में और कबीर वाणी चैप्टर पे 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी हवे हवे होता है। 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी मेरी यथार्थ ज्ञान फिर से प्रकट करवाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी में सारा ज्ञान फीड कर दिया, उन्होंने फिर बोला और लिपिबद्ध किया गया। अब कहते हैं 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी। हमारी वाणी को समझने की चेष्टा करेंगे गरीबदासी पंथ वाले, लेकिन समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। अब गरीबदास पंथ तक भी परमात्मा ने बैन लगा दिया कि ये पार नहीं हो सकते। फिर कहते हैं 12वें पंथ हम ही चल आवे। ओए होए, गरीबदास वाले पंथ में कहते आगे चल के हम ही आवेंगे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। क्लियर हो गया कि 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। जो थोड़ी बहुत गड़बड़ कर गए हैं वो फिर सुचारू करवा दूंगा और 12वें पंथ में हम ही आवेंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो इस दास को भेज दिया अपने को, लेकिन शक्ति उन्हीं की काम कर रही है और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। अब देख लेना कुछ दिनों में इस विश्व में एक ही पंथ रहेगा, एक ही भक्ति का मार्ग रहेगा। अब फिर क्या कहते हैं कि प्रथम चरण कलयुग निराणा तब मगर मांडो मैदाना। धर्मराय से मांडो बाजी तब धर बोधो पंडित काजी। अब कहते हैं प्रथम चरण जो होगा, 3 चरण बताए हैं, एक प्रथम एक लास्ट और ये मध्य का। तो प्रथम कलयुग में वहां से शुरू हुआ, परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे लाखों लोगों के व्यक्तियों की उपस्थिति में, ये प्रथम चरण था। अब यहाँ से समझ में आओगी कि 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रकट होगी, सही ज्ञान उससे मिलेगा। अब यहाँ कहते 5505 तब ये शब्द होगा साचा। है कहते 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा तब ये मेरी बात सच्ची होंगी जो आज मैं बता रहा हूँ तेरे को, कि हम प्रकट होंगे, सब ज्ञान सब पंथों को मिटा के एक पंथ चला देंगे। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बार ना जाई, ये बार है। और पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही राख्या। गोय माने गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई जब लग 12 पंथ बिटाई। अब ये 12 पंथों का नाश हो जाएगा क्योंकि उनके पास भक्ति का कुछ नहीं, उनकी विधि का पता। अब सच्चाई अब हम प्रकट करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, ये कबीर बोध कबीर वाणी हम पढ़ रहे हैं, इसमें और कंसेप्ट क्लियर कर दिया। 134 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम। ये चूड़ामणि जी हैं, ये प्रथम वंश तो उत्तम। दूसरा वंश अहंकारी वो जागू, और तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, 5वां वंश यह निंद्रा, और 6ठा वंश उदास, 7वां वंश ज्ञान चतुराई, और 8वां वंश 12 पंथ विरोध, 9वां पंथ वंश पूजा, और 10वें वंश प्रकाश, 11वें वंश पसारा, और 12वें वंश हवे प्रगट उजियारा। 12वें में गरीबदास जी 12वां पंथ हो गए। इनके द्वारा मेरी वाणी का 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा। मेरी वाणी का यानी मेरी महिमा फिर से कुछ उजागर होएगी, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास 13वां वंश है उस परम पिता का। कहते हैं सारा अंधेरा मिट जाएगा, ऐसा ज्ञान देगा वो, सब तरह से सेट कर देगा। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। एती दगा काल की समाई, तत्बिंदु की टेक रह जाई। ये काल का इतनी दगा होगी, फिर भी तत्व ज्ञान कहीं ना कहीं सदगतों में छुपा ही रह जाएगा। अब आपको जिसलिए सारा कुछ प्रकरण दिया है,
जैसे आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में स्पष्ट देख लिया कि उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और वो परमात्मा एक सुंदर शरीर को प्राप्त होता है, भासमान शरीर को, और उसके 3 प्रकार का शरीर होता है। और जब उन 3 प्रकार के शरीरों में जो लीला करता है उनमें से एक में शिशु रूप धारण करके आता है, तब कुंवारी गाय से दूध पीता है। अब जैसा कबीर सागर में लिखा था तो वहां इसमें करेक्शन करने वालों ने उन्होंने सोचा कि रामानंद से ही जोड़ दिया कि उसने न्यू बता दी तुम कुंवारी गाय का दूध पिएगा, और आगे लिखा वो दूध, वो फिर दूध चला गया, वो दूध का प्रकरण काट दिया इन्होंने। फिर भी मालिक की दया से वो 2 पंक्ति रहेगी। अब गरीबदास जी ने वो निर्णय किया है, क्या, अब पढ़ के सुनाते हैं आपको। अब परमात्मा ने जो बताया कि मेरी वाणी प्रगट होएगी 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, लेकिन गरीबदास जी की वाणी को भी गरीबदास के पंथ वाले, उससे पहले वाले कोई नहीं समझ सकेगा। ये मेरी वाणी का निर्णय करने की चेष्टा करेंगे पर इनको ज्ञान नहीं होगा, और ये 12 पंथ हम ही को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। अब इस दास के साथ क्या हुआ कि हम छुड़ानी जाते थे जहाँ गरीबदास, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था, जहाँ परमात्मा कबीर देव जी उनको जंगल में आकर मिले थे। हमारे पूज्य गुरुदेव जी वहाँ जाते थे, एक लिंक जोड़ना था, पहले लिखा हुआ था, इसलिए गुरु जी के सतलोक जाने के बाद हमारा वहाँ पर बहुत विरोध हो गया, क्योंकि हम सच्चाई बतावें, वो अनुवाद गलत करें गरीबदास जी की वाणी का, तो हमारा उनका पार नहीं पड़ी, हमने अलग से आश्रम सेट करना पड़ा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬਲੋਚਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜੀ, ਗੰਡੂਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਕੋਈ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜੋਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜੋਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਜਗਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਗਾ ਪੂਜਣਾ, ਬਾਗੜ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੂਜਾਵਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? 28 ਸਾਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੂਜਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸਰੇ ਦਮਨ ਜੀ ਅਤੇ ਫਰੋਲੈਂਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ। ਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾ, ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਾ ਲਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਾਰੂ, ਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਏ।
ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਦਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਅਸਲ ਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਜ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਭ ਤਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਲਾਭ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਾਸ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਦਾਰੂ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੰਦਰ GT ਰੋਡ ਹੀ ਬਣਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ, ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਦੇ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੰਖਾਂ ਜਨਮ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਧੀਐ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਅਤੇ 3 ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਅਗਨੇ ਬਿੰਬ ਪਮਰੇ ਕੀ ਬਾਣੀ 3 ਨਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ, ਅਤੇ 299 ਅੰਗ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਏਕ ਓਟ ਏਕ ਆਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਸਾਰ, ਵੀ ਸਾਰ ਨਾਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਰ ਬਾਧਾ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿੰਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕੁੰਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੁਵਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫੈਲੇ ਵਿੱਦਿਆ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗੋ, ਸਰਚ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਰੂ ਗੁਰੂ, ਟਰੂ ਸੰਤ ਇਨ ਵਰਲਡ, ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਰੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੰਤ, ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ ਇਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।